अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन का है। एक्सक्रीशन हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता क्या है? बेसिकली एक्सक्रीशन इज़ यूरिनेटिंग। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजनस वेस्ट्स जो होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी and they should be removed. Nitrogenous wastes are the wastes that have nitrogen in it. For example, urea. Urea is one of the nitrogenous waste. Why it should be removed from the body? Because it is toxic. And if it stays in the body, it starts killing the cells. Hence, it should be removed. Okay. Now, other than the kidneys, there are many other organs of excretion. For example, lungs. You already know that lungs, they are involved in the excreting carbon dioxide. Carbon dioxide, if stays in the body, it may prove very harmful. Skin is another excretory organ. It helps in removing urea, that but in a little quantity, in the form of sweat. Sweat में हमारे यूरिया होता है but in a little quantity. So skin also helps in removing the harmful waste. Liver is another organ. It helps in the removal of ammonia. बेसिकली होता क्या है कि लिवर में जो मतलब लिवर जो हमारा एक्सक्रीटरी वन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर लार्जली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। और लिवर में क्या होता है, जो ये प्रोटीन्स होते हैं दे ब्रेक डाउन और लॉट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. So ammonia should be removed from the body and the liver plays a major role in it. And the main excretory organs, they are the kidneys. And the kidneys, they help in the removal of urine. और यूरिन में क्या होता है, that contains a lot of urea, and urea is one of the toxic nitrogenous waste in our body. Now let's study about the structure of human excretory system. Here I have drawn the diagram of the human excretory system. Here it consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, the blood vessels coming in and coming out. And for your information, the blood vessels that are associated with kidneys, they are called as renal. So renal artery and renal vein are the main blood vessels. There is a urinary bladder and lastly urethra. किडनीज क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस यूरिन. और यूरिटर्स जो है वो कैरी करते हैं यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द urinary bladder. Urinary bladder, it stores the urine, and urethra, it removes urine from our body. जो किडनीज होते हैं इनमें मिलियंस ऑफ मोर देन मिलियंस ऑफ छोटे छोटे जो होते हैं फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, दैट वी कॉल एज नेफ्रॉन्स. Now let's study about the function unit of kidney, that is the nephron. यानी कि हमारी दोनों किडनीज में मोर देन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और वो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर इस तरह से है. आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्म इट. लेकिन फॉर यूवर फॉर यूवर आपकी ईजीनेस के लिए मैंने इसका अलग से डायग्राम बनाया है. देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मैंने यहाँ पर आपको दिखा है. दिस इज़ वेरी इजी टू फॉर्म. इट कंसिस्ट्स ऑफ Bowman's capsule. Bowman's capsule is actually a cup-shaped structure, and it consists a bunch of capillaries. उनको हम glomerulus कहते हैं. Glomerulus क्या क्या होते हैं? These are the capillaries that arise from the renal artery. और ये अपने साथ ब्लड के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी लाते हैं and a lot of water. अब देखते हैं हम कि जो हमारा मेन दैट टॉपिक है, दैट इज़ द स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन. And there are 3 steps in the urine formation, that is ultrafiltration, tubular reabsorption and tubular secretion. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है कमिंग दैट इन द Bowman's कैप्सूल, ये यहाँ पर फिल्टर हो जाता है. एंड इट कंसिस्ट्स, एज यू नो, इट कंसिस्ट्स अ लॉट ऑफ वाटर.
इसमें यूरिया भी होता है, सॉल्ट्स होता है, ग्लूकोज भी होता है, लेकिन एक्सेप्ट जो होता है कि प्रोटीन्स को ये फ़िल्टर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है। ओके, एंड देन द ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। देखिए, जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसको हम कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है जब ये रीएब्जॉर्ब होता है तो इसमें बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल्स भी होते हैं, लाइक ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, सॉल्ट्स होते हैं, या फिर मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है। एंड दीज यूज़फुल मटेरियल्स दे नीड टू बी रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड। और ये कौन ले जाता है, ये इफरेंट आर्टरियोल, उसके बाद ये यूज़फुल मटेरियल्स ले जाते हैं। उसके बाद आ जाती है टिब्यूलर सिक्रीशन। टिब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है, टिब्यूल जैसे कि पीसीटी है, हैनलीज लूप है, एंड डीसीटी। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल। ये जो टिब्यूल्स होते हैं, ये तीनों टिब्यूल्स ये करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं आयंस, ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, and they produce ions and put it into this tubule, इसमें डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आयंस लाते हैं हाइड्रोजन के, पोटेशियम के, या अमोनियम आयन लाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों डालते हैं इसमें, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस इन द यूरिन। और इस तरह से हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन है इन तीन प्रोसेस से जो बनकर होता है, बन जाता है, दैट गेट्स कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद थ्रो यूरेटर्स, वो चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड थ्रो यूरेट्रा इट इज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, दैट्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।